Hello and very good evening to everyone. Welcome to a session on managing children in COVID. Myself, Vaidehi Nawathe, Chief Dietitian of Bhaktivedanta Hospital and Research Institute, would like to invite you all and invite our eminent speakers of today's topic, all pediatricians of Bhaktivedanta Hospital and Research Institute, Dr. Ajay Sankhe, who will be talking about fear of corona in children, Dr. Sambrat Mehta, who will speak on how to identify corona, Dr. Anuradha Joshi, who will speak about how to protect our children from corona, and Dr. Sandeep Garg, who will speak about managing screen exposure and their mental effects. First of all, I would like to invite our dear director, Dr. Ajay Sankhe sir. I would like to introduce him. He is MBBS MD in Pediatrics. He is a director of Bhaktivedanta Hospital and Research Institute. He has more than 25 years of experience in the clinical practice and is a renowned pediatrician in the north region of Mumbai and Thane. He is recognized for his commitment to social upliftment and has received many awards. In particular, he has received Rashtriya Udyog Ratan Award in 2013, given by National Organization for Commerce and Industry. The hospital has received a Worldwide Achievers Healthcare Excellence Summit Award in 2015 for Best Multispecialty Hospital in Maharashtra for innovation and research at the hands of Honorable Mr. Ram Vilas Paswan. Dr. Sankhe is a leader and spearheaded several projects for upliftment of the society. During the COVID pandemic, Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi Government Hospital in Bhayandar West was set up in record time of 15 days under his able guidance. I welcome Dr. Ajay Sankhe sir, and I would like to know from you, sir, about how much does corona affect children and to what extent we as parents should fear. Also, if at all he can throw some light on the practical tips to live with corona while protecting our children. Over to you, sir. Okay, thank you, Vaidehi. And thank you all my colleagues who are here, Dr. Samrat, Dr. Anuradha, and I think Sandeep also might have joined. And thanks to the organizers, particularly Urmila Nabar and Yatin, for organizing this. And welcome to all the parents who have joined. Obviously, the parents are much more concerned about the children than themselves. So we do not mind as adults, we can suffer, but if the children suffer, that's a kind of emotional kind of a issue to be handled. And that's why when we started in the beginning about how to deal with this corona epidemic, and in several meetings of healthcare workers also, what I noticed is that many healthcare workers, they were never worried about themselves. They would say, no, I'm not worried about it. I'm worried about the children in my family. So that was the initial period when the high risk group included small children, very aged people, about 55, 60, those who have comorbidities, etc. And by April, we were already knowing what is corona, but still the corona as an entity was quite unknown to us. At that time, at our hospital, Bhaktivedanta Hospital, we decided that we will do corona testing for all patients who are admitted, so that if somebody has corona, then at least our healthcare workers can be protected. And we remember that there was one small child who was maybe 2 weeks old, and he was referred from northern suburbs of Mumbai for surgery. And as a routine, we did the test, and the small child was positive. So we were really worried that this small child who's already in a very high risk group, and something will happen, and it was like a tense moment for all our staff and doctors.
But as they say, baby luck. So baby was doing extremely fine. The surgery went well, and baby was recovering very well. Everything except the people around the baby were completely worried, but the baby was not worried. Baby was doing very well. So, and the baby recovered. Of course, baby was shifted to some other hospital because it was COVID. So after that, now, as of today, you know, hundreds and thousands of cases are coming up. So today, for example, yesterday, 18th, we had 96,000 new cases, almost a lakh. By September end, we might have 1.5 to 2 lakh per day. That's a possibility. So it's a huge growth of cases, and we might surpass every other country in the world. So that's the present scenario. But at the same time, the children, as they say, baby luck, God protects them. Somehow, the incidence of corona in children is universally, all over the world, lower than the adults. Say, we do not have much evidence in the overall Indian statistics, but the CDC, the Disease Control Unit of USA, they have some statistics. So they have said 7 to 10% of children, 7 to 10% of all COVID cases will be children. So which is overall population of USA, 22% are children. So amongst them, only 7 to 10% compared to the adults. So it is much lower as it can be seen. In Maharashtra, some statistics is available, and the statistics says 4 to 6% children are affected. The our own statistics, when we began in the Pandit Bhimsen Joshi Hospital at Bhayandar, our team was doing majority of the work. So we had the statistics. So out of the first 310 cases, 16 were children. So that fits into that 4 to 6%. So that's the percentage of children who are affected. And how do they get affected? Many of them, and those who have symptoms, they have fever, cough, some simple symptoms. Of course, Dr. Samrat will talk about it more. But there is a entity which happens not during COVID, but after COVID, which people are worried and they ask us questions, which I'll just mention briefly. That is called as the multi-system inflammatory disorder. So multiple systems are inflamed, like the brain, the heart, the joints, skin, the circulatory system, the gastrointestinal system, like that. So various people are asking us this question about this particular entity, which is not so common. And also the recovery is good after giving due treatment. So Dr. Samrat will cover that. Beyond that, overall, I would say the children, they are lucky or they are protected that they don't suffer. Practically, there is no complication known. Overall mortality all over the world is 0 to 0.5%. Almost zero, you can say. Those who succumb sometimes, unfortunately, that is because of the comorbidities. And one of the comorbidities, important comorbidity, is obesity. If the children are obese, yes, that's a possibility. So this is, I would say, how they present. I'm just giving a brief overview of the whole thing. And the major challenge for them is because of corona, something else is happening to them. Actually, corona is not affecting them so much, but something else is affecting. What is that? Because children have so much energy, इतना उछल कूद करने, लेकिन अभी वो घर पे बैठे, घर के 4 दीवार में 600 स्क्वायर फुट का फ्लैट, 1000 स्क्वायर, कितना भी बड़ा होगा,
तो बच्चा तो बहुत, उसको दीवार में बंद करना मुश्किल होता है. सो देयर इज लॉट ऑफ बोर्डम and some psychological issues are there. So children get other issues, mental health issues are increasing in children. जैसे उनको चिंता किस चीज की होती है कि लोग मर रहे तो मुझे भी कुछ हो जाए. तो उस चिंता का प्रभाव क्या है, उनको डीप ब्रीदिंग होता है, जोर जोर से सांस लेते हैं. कभी कहीं कहीं जहां पर दर्द नहीं होना चाहिए वहां दर्द शुरू हो जाता है. जैसे मेरे पास एक बच्चा है तो वो बता रहा था, वो मम्मी बता रही थी उसकी कि इसको डॉक्टर साहब कहाँ दर्द नहीं पूछो आप, और कभी भी शुरू हो जाता है, और जब तक मैं उसको साथ में बाजू में लेती नहीं तब तक वो चालू ही रहता. सो ही वाज एक्चुअली शोइंग मी अभी इधर दर्द है इधर. फिर थोड़ी देर के बाद उधर ही आई स्टार्टेड टॉकिंग, बोला अभी इधर है इधर. तो कहीं पर भी दर्द दिखा जाता, बट एकदम पीसफुल, उसको कोई बुखार नहीं, कोई तकलीफ नहीं. ऐसे बाहर जाएगा तो नाच रहा है, कूद रहा है. सो हॉस्पिटल आने से वो खुश था एक्चुअली, लेकिन फिर भी दर्द दिखा रहा था. दूसरी एक बच्ची आ रही तो वो बता रहे थे कि उसको छाती में, हार्ट में दर्द है. वो ऐसे दिखा रहे थे इधर दर्द है, क्योंकि वो लोग डिस्कशन सुनते हैं. हमारे टेलीविजन में चर्चा चलती है, वही चलती है. अभी कम होगी लेकिन चलती रहती है. घर में वही चल रही है, इसका ये बिल्डिंग में ये पॉजिटिव आ गया, वो गुजर गया, जो भी गया. सो फियर ऑफ डेथ, children are suffering from that fear of death of themselves and the near and dear ones. Boredom, anxiety. So these are other issues. और उसके कारण अभी कोरोना के कारण स्कूल्स नहीं है तो उनका एकेडमिक लॉस हो रहा है. वैक्सीनेशन बहुत बच्चों का हो तो उनका वो रिस्क बढ़ रही है. तो ये सब चीजें कोरोना के कारण हो रही है. लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल बच्चों का जो कोरोना के साथ इस प्रकार से हम सोच रहे थे शुरू में कि हाई रिस्क कैटेगरी में, वैसे दिख नहीं रहा है. चिल्ड्रन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. प्रैक्टिकली नो चाइल्ड हैज एनी इश्यूज विद कोरोना. दे जस्ट कम आउट हैप्पीली, वो खुशी से बाहर आ जाते हैं. लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि भले ही बच्चे को कोरोना होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके कारण उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, वो छींकेगा, खांसेगा, उसका जुटन कोई खाता है तो दैट इज एज गुड एज एनी एडल्ट, शायद ज्यादा भी हो सकता है. क्योंकि हमारा बच्चों के साथ उसको कितनी बीमारी के प्रेम के कारण बहुत नजदीक का रिश्ता हो जाता है. वी फॉरगेट कि उसको कोरोना है. तो ये अगर किसको होता भी है और डॉक्टर ने बोला कि आपको टेस्ट करना चाहिए कोरोना को, तो कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि बच्चे को तो कुछ होने वाला नहीं, हमें भी मालूम है, लेकिन बाकी जो एडल्ट्स हैं उनको ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी इज ऑलमोस्ट द सेम. इसलिए अभी के माहौल में मैं ये छोटी सी बात कह के अंत करूंगा ताकि बाकी लोग बोल सकते हैं. अभी का माहौल ऐसा है कि शुरू में जो हम लोग सोच रहे थे कि बच्चों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, कितने बार लॉकडाउन बढ़ाते गए. अभी अनलॉकिंग शुरू है, वो भी कभी थोड़ा ढील देते फिर से खींचते हैं. लेकिन अभी मानो कि लगभग पूरे भारत में वी आर गोइंग टू द स्टेज 3 कम्युनिटी स्प्रेड. ऑलरेडी दिख रहा है, भले ही ऑफिशियली पूरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन सब लोग एक्सेप्ट करते कि वी आर ऑलमोस्ट देयर. सो कम्युनिटी स्प्रेड में बीमारी कहीं से भी आ सकती है. तो अभी आप कितने भी लॉकडाउन करोगे तो भी घर में आ सकती है बीमारी. इसलिए जैसे अगर वर्षा हो रही बाहर तो हमारे पास 2 चॉइस होते हैं कि बाहर जाओ भी मत, लेकिन जाना तो पड़ता है. तो जब जाएंगे हम, बारिश में जाएंगे तो क्या करेंगे, छाता, रेनकोट. कैन यू हियर मी? Yes.
सो जैसे बारिश में जाते हैं तो छाता रेनकोट लेके जाते हैं ताकि प्रोटेक्शन हो सके, उसी प्रकार से हमें इस कोरोना सीजन में पूरा प्रोटेक्शन के साथ अगर बाहर जाना ही है तो पहले तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाना है तो इस प्रकार से ताकि हम मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये सब लेके ही निकलें। लोगों से जो फिजिकल डिस्टेंस है कम से कम 6-7 फुट का रखें, और इस प्रकार से अगर रहेंगे तो हमारे बच्चों का और हमारा सबका प्रोटेक्शन हो जाएगा। यही एक तरीका है। बाकी अभी हम कितने भी घर में बैठेंगे तो भी फायदा नहीं होगा, लेकिन मिनिमम पब्लिक एक्सपोजर करके जितना हमारा जरूरत है उतना काम करना चाहिए। डिसिप्लिन रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। दिस 3 फैक्टर्स, सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन, इसी से जहां जहां भी कंट्रोल आया उसी से आया है। और घर में सब लोगों को ऐसे आदत डालो कि सब लोग स्वस्थ प्रकार से सो जाए, आराम से सो जाए, क्योंकि नींद डिस्टर्ब स्लीप इज अ लैक ऑफ इम्यूनिटी, इज कॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी। समय समय पे खाए, हेल्दी डाइट खाए, और किसी प्रकार का स्ट्रेसफुल डिस्कशन या स्ट्रेसफुल कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, ताकि सब लोग पीसफुल रहे और उसके कारण हमारी इम्यूनिटी चुस्त रहे। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, ताकि भगवान की प्रार्थना से हमें अंदर से आध्यात्मिक बल मिलने से भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और बाकी सब तो काढ़े वाड़े सब आपको बहुत सारे व्हाट्सएप पे मिलते ही है वो आप उसमें से कितना पालन करते हैं हमको पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपके 24 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। लेकिन वी आर रिकमेंडिंग 3 थिंग्स: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड वॉशिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ने जो आज के इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत की है एसएमएस से, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो एसएमएस हमेशा हमारे मोबाइल में नहीं, हमारे माइंड में भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वो कभी डिलीट नहीं होना चाहिए। On this positive note, I take the session further. I welcome Dr. Samrat Mehta, जो MBBS and MD in pediatrics है. He is a senior consultant of Bhaktivedanta Hospital and Research Institute. He has 28 years of experience, post MD faculty for DMD pediatrics as a senior consultant. रिसर्च में सर ने केस रिपोर्ट्स जो किए थे उसमें हार्लिक्विन बेबी ऑनगोइंग रिसर्च गाइड फॉर डीएनबी स्टूडेंट्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड स्कूल परफॉर्मेंस का केस स्टडीज, टीएसएच लेवल्स इन इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स सर के हैं। एंड उनके पब्लिकेशंस है टाइफिडॉट एंड ब्लड कल्चर, ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर एंड जॉन्डिस। आई वेलकम डॉक्टर सम्राट मेहता। सर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स। हाउ टू नो इफ द चाइल्ड हैज गॉट कोरोना एंड व्हेन टू कम टू द हॉस्पिटल, ओके, इन दैट केस, एंड व्हाट आर द डेंजर साइंस व्हिच आर फाउंड इन कोरोना? ओवर टू यू सर। Hare Krishna. I think everybody is able to hear me. Yes. Thank you for giving me the opportunity to speak on this platform. और माता जी, क्योंकि बहुत से हमारे जो श्रोता हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को रखने का, और जहाँ तक हो सके जो मेडिकल टर्म्स है उसको हम अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा रहेगा। जब भी हम ये बात करते हैं कि बच्चे को कैसे कोरोना है या नहीं ये इसका पता करें, तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो भी है बच्चों का, एपिडेमियोलॉजी, जिस सर्कमस्टांसेस में बच्चे हैं, जो लेबोरेटरी टेस्ट करने का और एक्सरे करने का जो है, इससे हम लोग को पता करना पड़ सकता है कि बच्चे को कोरोना है या ना है। हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे को हम लोग सोचे कि कब सोचे कि बच्चे को कोरोना हो सकता है। जब भी बच्चे को फीवर हो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, खांसी हो, गले में तकलीफ़ हो,
सर बदन हाथ में दर्द हो, हेडेक हो, कंजक्टिवाइटिस हो, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कम कॉमन सिम्टम्स हैं जो बच्चे में हो सकते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल ओल्डर बच्चों में भी पाया जा रहा है। कोई भी बच्चा जिसका कि ये मालूम नहीं पड़े कि क्यों बुखार आ रहा है, उसमें भी हमको शंका करना पड़ सकता है, खास करके अभी की हालत में जब केसेस जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस हालत में हम लोग ये भी ध्यान देना पड़ रहा है कि क्या बच्चे घर में कोविड केस के पॉजिटिव हैं, या कैसे कभी कहीं ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो, या कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, गाँव से जाके आए हैं। उस तरह की हालत में हम लोग को कोरोना का शंका करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं बच्चे में, बुखार का आना, खांसी होना या सर्दी होना, बदन हाथ में दर्द होना, या हम लोग देखते हैं कि सही मायने में बहुत सी बीमारियों में ऐसे लक्षण हो सकते हैं, खास करके बच्चों में। तो बहुत बार हमको लगता है कि अगर जो है बच्चे को बुखार है, खांसी है, तो कोरोना है या नहीं है, ये पता कर पाना छोटे बच्चे में बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक हम देखेंगे जो सबसे ज़रूरी जो सिम्टम्स है, फीवर, ड्राई कॉफ, वो फ्लू के में भी उतना ही ज़्यादा है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, वो भी फ्लू कंडीशंस में पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में सर्दी की मात्रा ज़्यादा है, फीवर है ही नहीं, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद हमारे बच्चे को फ्लू कोविड-19 का केस नहीं है हमारा बच्चा। ये डिसीजन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे में, जो अपने तकलीफ को खास करके नहीं बता पाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि छोटे बच्चे में एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें हो सकता है कि बच्चे को कुछ भी सिम्टम्स नहीं हो और उसके बावजूद जो है वो बच्चा कोविड का पेशेंट निकल पाए। तो इसलिए सिर्फ लक्षण के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चा को कोरोना हुआ है, कोविड का बीमारी है, नहीं है। इस स्थिति में हम लोग को निर्भर करना पड़ता है टेस्ट पे। कौन से टेस्ट? तो उस टेस्टिंग के लिए हर समय में नए नए गाइडलाइंस आते रहते हैं। हाल में जो गाइडलाइंस आए हैं ICMR का, वो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को टेस्ट करना पड़ सकता है। यूजुअली जो टेस्ट हम लोग करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक RT-PCR टेस्ट और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट। जहाँ पे भी कोरोना के केसेस ज़्यादा रहते हैं, वो सब केसेस में हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट आज के दिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पहले जो है सिर्फ RT-PCR टेस्ट ही हम लोग करते थे। जब से रैपिड एंटीजन टेस्ट आया है, उसकी फ़ायदा क्या है कि वो टेस्ट हम लोग को बहुत कम समय में उसका रिजल्ट मिल जाता है और हम लोग जान पाते हैं कि हाँ वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। जैसा कि डॉक्टर संख्या ने भी बताया कि बच्चे जो है हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, बच्चे हो सकता है कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो, लेकिन अगर उन्हें पॉजिटिव है तो हम लोग को चिंता की बात होती है, क्योंकि वो दूसरों के संपर्क में रहते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव है तो हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है और सिम्टम्स ऐसा सजेस्ट करने की हो सकता है वो कोरोना के सिम्टम्स हो, उस हालत में हम लोग को RT-PCR रिपीट करना पड़ सकता है। जब भी अगर पेशेंट को रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो उस हालत में एसिम्प्टोमेटिक है तो हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर दोबारा सिम्टम हो तो फिर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम लोग इतना दिन से सब लोग टीवी पे सुन करके पागल हो गए हैं कि हाँ ये कोरोना में ये लक्षण है, वो लक्षण है, तो हम लोग आज क्यों बात कर रहे हैं कि बच्चों में के बारे में, बच्चों को कोरोना है क्या नहीं? सबको तो मालूम है क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली माइल्ड होते हैं। बहुत से बच्चों में सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग बहुत क्लोज होते हैं एल्डरली लोगों के, जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज होते हैं और वो लोग उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में कोरोना पेशेंट्स है कि नहीं है। बच्चे में जो बच्चे भी अगर जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बहुत ओबीज हैं, जिनको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवा चालू है, स्टेरॉइड्स चालू है, उस तरह के बच्चे को हम लोग को एडमिट करना पड़ सकता है, उनको हॉस्पिटल में लाना पड़ सकता है। और ख़ास करके एक जो नया बीमारी के बारे में अभी डॉक्टर संख्या ने बताया कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन, जो एक शिकायत है बच्चों में, वो होने पे भी बच्चे को हम लोग एडमिट करने का सोच सकते हैं।
जब हम देखते हैं कि बच्चे में सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है, इसमें बहुत से कैटेगरी में बांटा गया बच्चों को। एक तो कैटेगरी ए जिसमें माइल्ड पेशेंट होते हैं, कैटेगरी बी जिसमें जो है कोमॉर्बिडिटीज के साथ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। ये दोनों तरह के बच्चे उस तरह के हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है कम नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर ही रहता है। जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो धड़कन है, वो सब भी नॉर्मल होते हैं। इस हालत में यूजुअली कैटेगरी ए पेशेंट को हम लोग घर पे ही इलाज करने के लिए बोलते हैं, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको हम लोग को नोटिफाई करना चाहिए। जो कैटेगरी बी में है वो चिल्ड्रन वैसे हैं जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं या छोटे बच्चे हैं, लेस देन 2 इयर्स के हैं। इस तरह के बच्चे को बहुत बार एडमिट करके रखना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी ही सीरियस हालत में बदल सकते हैं। उनको ज़्यादा ज़रूरी है क्लोज मॉनिटरिंग करना और रिपीट टेस्टिंग करना। अगर हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी B2 और कैटेगरी C, ये दो और कैटेगरी हैं जिसमें B2 में जो है मॉडरेट तरह के इलनेसेस हैं और इसमें बच्चे को ऑक्सीजन के लेवल 95% से कम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस जल्दी जल्दी चलना, फेफड़े में कुछ क्रेपिटेशंस मिलने, एक्सरे वगैरह में कुछ और सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग होना, ये जो लोग हैं वो मॉडरेट कैटेगरीज में आते हैं जिनको कि एडमिट करना ज़रूरत होता है, टेस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ एंटीबायोटिक्स देना पड़ सकता है, हम लोग ब्लड कल्चर भेजना पड़ सकता है ये जानने के लिए कि कहीं और उनको इन्फेक्शन है या नहीं है। इन तरह के बच्चे में कोविड पॉजिटिव होने पे उनको एंटीवायरल ड्रग और स्टेरॉइड भी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो सीवियर कैटेगरी के बच्चे हैं वो उस तरह के हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रहा है, जिनको शॉक हो रहा है, जिनको सांस लेने की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको बोलते हैं ARDS में जाना, जिनको जो सीरियस हैं, जिनको बेहोश जैसे हालत में, अल्टर्ड सेंसोरियम हालत में हैं, उस तरह के बच्चे इस कैटेगरी में हैं और इन सबको हम लोग सीरियस कैटेगरी में, कैटेगरी C में मानते हैं। अगर हम लोग देखें कि कौन से बच्चे हैं जिनको कि हम लोग ये माने कि डेंजर साइंस है उनमें और उनको ला करके एडमिट करना चाहिए या उनको डॉक्टर के पास ज़रूर लाना चाहिए, उसमें है वो बच्चे जिसमें हाई फीवर आ रहा है, खास करके अगर वो परसिस्ट कर रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, वो जो बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशंस चालू है, जिनका सांस लेने का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जिनको बच्चे जो है नीला पड़ रहा है, धड़कन तेज है, जो बताता है कि हार्ट का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है, जिनमें ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है, फिट्स आ रहे हों, बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बच्चे बेहोश जैसे हालत में है, यूरिन का प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शंस ब्लड टेस्ट में एबनॉर्मल है, इस तरह के बच्चे जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा हो, जिनको एक्सटेंसिव स्किन लीजन है, उनको कहीं पे भी ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, कहीं से भी खांसते हैं उनसे ब्लड जैसा आता है, वॉमिटिंग में ब्लड जैसा आ रहा है, इस तरह के बच्चे को हम लोग निश्चित रूप से डॉक्टर के पास संपर्क के लिए जरूर लाएं ताकि उनका सही ढंग से इलाज और जांच हो सके। सर हाँ सॉरी, ये मिस सी जो है ये आजकल बहुत सारा भी हमें जानकारी में आ रहा है, तो ये एक्चुअली डेंजरस है वो? माता जी, मिस्सी जो वर्ड है ये आज के दिन में सब लोग करीब करीब पूछ रहे हैं हम लोग से ये मिस्सी क्या है, क्योंकि ये मिस्सी जो है वो बेसिकली चिल्ड्रन का ही कंडीशन है और ये जो कंडीशन है इसमें इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। इसमें एक सिस्टम नहीं बहुत से सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और अगर देखा जाए कि कौन कौन सा क्राइटेरिया से हम लोग सोचेंगे कि मिस्सी है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिस्सी नाम की जो शिकायत है वो एक्यूट कोरोना का जो समय है उस समय नहीं होता है, यूजुअली वो कुछ समय बाद होता है, कुछ वीक्स बाद होता है, हो सकता है 2 वीक्स बाद हो सकता है 4 वीक्स बाद हो, यूजुअली उस समय तक जब जैसा कि हम लोग समझते हैं कि एंटीजन टेस्ट हो सकता है कि नेगेटिव भी आए, तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बीमारी जो है मिस्सी ये कोरोना से ही रिलेटेड है। इस स्थिति में क्योंकि ये बच्चे जो है उनको यूजुअली फीवर रहता है, हाई डिग्री ऑफ फीवर है जो परसिस्ट करता है, 4 दिन 5 दिन तक हो रहा है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कुछ मजा नहीं, कुछ बच्चे को बेहतर नहीं नजर आ रहा है, उसके साथ साथ कोई भी ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, बच्चों को शॉक हो सकता है, हार्ट का फेलियर का कंडीशन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है। इन एडिशन एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बच्चे में जो अधिकतर होती है 5 साल से कम के बच्चे में, कावासाकी डिजीज,
इसका भी पार्शियल मैनिफेस्टेशन हो सकता है मिस्सी के बच्चों में। इस हालत में मिस्सी कहने के लिए हम लोग को एक और चीज़ करना पड़ेगा कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कहीं और कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है जो हम लोग को छांटना चाहिए। उसके लिए ब्लड कल्चर और भी टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को लैब टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें जो हम लोगों ने अभी बात किया कि कोविड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, पीसीआर टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो एंटीजन टेस्टिंग और पीसीआर टेस्टिंग करते हैं वो पॉजिटिव भी आ सकता है मिस्सी केसेस में या नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये यूजुअली जैसे हमने बात किया कि 2 सप्ताह बाद आ सकता है, 3 सप्ताह बाद आ सकता है। तो यूजुअली एंटीजन टेस्टिंग तब तक नेगेटिव हो सकते हैं। तो इन केसेस में हो सकता है कि एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो। ये भी हो सकता है कि मुझे हिस्ट्री मिले कि हाँ घर में और लोग को कोविड हुआ था, बच्चे को कुछ नहीं था तकलीफ, या हल्का बुखार आया था, थोड़ा तकलीफ में था बच्चा, और उसके बाद एकदम ठीक हो गए सब लोग, और 2 वीक बाद 3 बाद जो है बच्चे को ये सब सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। अगर देखेंगे कि कॉमन सिम्टम्स जो है मैनिफेस्टेशन जो है मिस्सी के, जो हम लोग के पास भी जो केसेस आए हैं उसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते फीवर का परसिस्ट करना, एब्डोमिनल सिम्टम्स खास करके पेट में दर्द होना, डायरिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव स्किन रैशेस विच इज एक्सटेंसिव। शॉक में बच्चे अधिकतर आते हैं, और लैब का टेस्ट अगर करते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सीबीसी, सीआरपी, प्रोकासिटोनिन, डी डाइमर, एलडीएच, ये सब टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं। तो बताते हैं कि हाँ बॉडी में पूरा सिस्टम जो है वो इन्फ्लेम्ड है। स्पेशली द ब्लड वेसल्स वगैरह का भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस बच्चे में। हार्ट वगैरह के लिए इको करके हम लोग देख सकते हैं, उसमें यूजुअली हार्ट में 2 तरह की शिकायत हो सकती है, या तो मायोकार्डाइटिस तरह की हालत में रह सकता है, या हार्ट के ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एनेरिज्म, जो यूजुअली कावासाकी डिजीज में एक बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है बच्चों में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कावासाकी डिजीज ही आज के दिन में बच्चे के हार्ट की बीमारी के लिए सबसे बड़ा कारण है। रोमेटिक हार्ट डिजीज अब बहुत इतना बड़ा कारण नहीं रह चुका। जहाँ तक ये डेंजरस है या नहीं, इसके लिए निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि मिस्सी डेफिनेटली डेंजरस है। इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली एंड टाइमली। अगर सुविधा नहीं है उस जगह पे, उस डॉक्टर के पास, उस क्लिनिक में, तो इस तरह के पेशेंट्स को अपने पास बहुत लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए। इसलिए वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ मिस्सी इन एनी चाइल्ड with persistent fever, abdominal problems, skin rashes, and we shouldn't consider कि skin rashes है वो तो hives जैसा है देखने में, it is obviously drug reaction। देखते हैं लेफ्ट साइड में जो फोटोग्राफ है उसमें एक्सटेंसिव रैश है बच्चे को। इस तरह के रैश के बच्चे हमारे पास एडमिट हो चुके हैं अपने हॉस्पिटल में भी, और ये बताता है कि हम लोग का इस तरह के रैशेस के बच्चे जो दिस इज नॉट ड्रग एलर्जी ओनली, कि उसमें परसिस्टेंट फीवर है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत इंक्रीज हैं, तो हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए और रेफर करना चाहिए। राइट साइड में हमारे फोटोग्राफ में जो है हम लोग देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिसमें आंख लाल हो गए है, माउथ है, टंग रेड है, स्किन में रैशेस हैं, हाथ पैर में भी सोल्स में रेड होते हैं। ये सब कावासाकी डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कावासाकी डिजीज के जब लक्षण होते हैं उसमें हम लोग इसके लिए चिंतित नहीं है कि सही मैंने बाहरी लक्षण क्या है। हम लोग मेन चिंतित है कि उसका हार्ट पे क्या असर है जो बच्चे के लिए तकलीफदायक हो सकता है। ये बीमारी मिस्सी या कावासाकी डिजीज के रूप में जो बीमारी आती है कोविड के बाद, ये निश्चित रूप से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। IVIG ड्रग्स या स्टेरॉइड देना पड़ सकता है, कुछ बच्चों को एस्पिरिन की जरूरत पड़ती है, और सही समय पे इसका अगर उपाय शुरू किया जाए तो बच्चे सही ढंग से रह सकते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है इसलिए डरने की बात नहीं है, रेयर मैनिफेस्टेशन है, बट इट इज डेफिनेटली ए सीरियस थिंग टू लुक आफ्टर। सर एक क्वेश्चन था कि मिस्सी के लिए कोई पर्टिकुलर एज लिमिट है? मतलब जी मिस्सी के लिए ऐसा एज लिमिट नहीं है। जो कावासाकी डिजीज है वो पहले यूजुअली उसका कारण कोई जानता नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो एज जो है यूजुअली लेस देन 5 इयर्स में वो कावासाकी डिजीज होते हैं। लेकिन मिस्सी में ये कावासाकी डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन है वो बाद के बच्चों में भी आ सकते हैं, बड़े बच्चों में भी आ सकते हैं। यूजुअली लेस देन 18 इयर्स के बच्चे में ऐसा हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे में हो। हालांकि आप लोग अभी तक हम लोगों ने जो बच्चे देखे हैं उसमें छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन यूजुअली मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन बड़े बच्चों में जो है ज़्यादा माना जाता है। जो 7-8 साल के बच्चे हैं उनसे बड़े बच्चे हैं। हम लोग के हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं उसमें छोटे बच्चे भी थे जिससे मिसी था, और जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली ट्रीट किया। एंड सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर मदर कोरोना पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है? मतलब जी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना जो है हमेशा फायदेमंद है, क्योंकि सही मायने में कोरोना जो कोविड मदर हैं वो न्यूबॉर्न खास करके जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को पिलाना, उससे बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। इस हालत में सिर्फ प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, जितनी संस्थाएं हैं वो सब इनकरेज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। मदर को मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, यहाँ तक ब्रेस्ट क्लीन भी रखना चाहिए ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी और सब चीजें आपने इतनी सिंपल भाषा में बताई तो डेफिनेटली पेरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, हरे कृष्णा। I would like to invite our next speaker, Dr. Anuradha Joshi. She is MD in pediatrics and she fellowship in PICU. She is a consultant in Bhaktivedanta Hospital and Research Institute. At present, working here as consultant pediatrician since last 6 years. Since last 10 years of post-MD experience in pediatrics she is having, she has perceived her special interest in pediatric allergies, asthma and immunology by completing training programs from Kanchi Kamkoti Child Trust Hospital, Chennai and Sir Gangaram Hospital, Delhi. She has special interest in pediatric allergies and asthma. I welcome you, madam. First of all, we start the session with first question to you, madam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. How to protect ourselves or elders if a child has COVID and vice versa? डॉक्टर संख्य और डॉक्टर सम्राट ने जैसे हमें समझाया है कि कोविड जो है बच्चों में जो कोविड होता है तो वो ज्यादा करके असिम्प्टोमेटिक होता है, तो इसलिए जनरली आगे नहीं जा रहे तो ऐसा है कि जनरली हमें देखते हैं हम कि बच्चे हमारे असिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें हल्का बुखार, हल्की सर्दी खांसी की लक्षणें हो सकती है। ऐसे बच्चों को आजकल सरकार के द्वारा होम आइसोलेशन की ही सलाह दी जाती है। ऐसे होम आइसोलेशन में जनरली बच्चों को एक पेरेंट्स या कोई केयरटेकर के पास रखना हमेशा अच्छा रहता है। जनरली पेरेंट्स को भी अगर कोरोना का संक्रमण हुआ है तो और पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पर बहुत बार बच्चों को भी हॉस्पिटल की सेवा हॉस्पिटल में रखना जरूरी होता है। जब कभी बच्चा घर में होता है किसी केयरटेकर या पेरेंट के साथ, तो हमेशा उन्हें जो केयरटेकर है उन्हें डेंजर सिम्टम्स जो होते हैं, जैसा डॉक्टर सम्राट ने सब डेंजर सिम्टम्स बताए हैं बच्चे में, उन्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि कभी भी हमें खतरे की लक्षणें दिखाई देती है, वो समय में तुरंत हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सके। होम आइसोलेशन की सुविधा में हमेशा जनरली बताते हैं कि 17 दिन तक, जैसे कि जब से डायग्नोसिस हुआ है या जब से सिम्टम चालू हुए हैं उसके बाद 17 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाए, या फिर बुखार जाने के बाद 10 दिन तक बच्चों को आइसोलेटेड रखना हमेशा अच्छा रहता है। बच्चे को एक सिंगल रूम में रखना बहुत मुश्किल होता है, यह हम सबको जानकारी है, बट फिर भी अगर घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी,
नाना नानी, तो ऐसे समय में बच्चे को एक सिंगल रूम में, जहाँ पर सेपरेट बाथरूम की सुविधा है, वैसे जगह पे रखना हमेशा सलाह दिया जाएगा। अगर बच्चा अकेला होता है वो या पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे को कंटिन्यूअस मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। पर अगर बच्चा अगर फैमिली मेंबर से या ग्रैंड पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है तो दूरी बनाए रख के मास्क पहनना जरूर अनिवार्य है। अब हमें मालूम है कि हैंड वॉशिंग जो है, बच्चे जो है जनरली कोई नई चीजें सिखाने पे जल्दी सीख जाते हैं, बड़ों से भी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। तो हैंड वॉशिंग जरूर बच्चों को सिखाए। 2 साल के ऊपर जनरली बच्चे हमें अच्छे से कॉम्प्लाई करते हैं, तो उन्हें साबुन और पानी से 40 सेकेंड्स तक हाथ धोना सिखाएं। जब खांसने के बाद, छींकने के बाद या नाक को मुंह को हाथ लगाने के बाद उन्हें हाथ धोना चाहिए, ऐसा उन्हें हम सिखाएं। अगर हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो 20 सेकंड तक हैंड रब कीजिए, ये उन्हें सिखाइए। बार बार जरूरत नहीं रहने पर भी नाक और मुंह को हाथ लगाना, मुंह में हाथ डालना नहीं चाहिए, ये उन्हें सिखाइए। घर पे अगर कोई भी बड़ा या बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो जनरली हमें जो फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस है घर में, जैसे कि डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें बार बार साफ कीजिए, सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कीजिए। घर पे भी अगर बड़े लोग हैं तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग हम लगभग 15-20 दिन तक आसानी से कर सकते हैं। हमें यह आदत होता है कि हमेशा बच्चों को पास लेना, बच्चों से खेलना, ज्यादा करके ग्रैंड पेरेंट्स को। बट यह समय ऐसा है कि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे भी अगर असिम्प्टोमेटिक है, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए उनसे 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है। घर में कोई अगर बीमार है, कोविड पॉजिटिव है, तो घर के जो भी सदस्य है उन्हें यह अवॉइड करना चाहिए कि कोई बाहर गैदरिंग्स, क्राउडेड प्लेसेस में जाना जरूरी है तो ही जाइए। घर में बड़े जो है 60 इयर्स एंड अबव, उन्होंने एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए जो 6-6 घंटे में वो बदल सके। फिर सरफेसेस डिसइंफेक्ट करते रहिए। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आजकल हमें फार्मेसी, मेडिकल शॉप्स में आसानी से उपलब्ध है, जो हम घर में क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर अगर घर में हमारे बच्चा है जो कोविड पॉजिटिव है, तो उसकी देखभाल के लिए सुबह शाम उसका टेम्परेचर मॉनिटर कीजिए। सैचुरेशन का जो है एक SpO2 मशीन भी आजकल मेडिकल शॉप्स में आसानी से मिलता है, वो सैचुरेशन सुबह शाम देखते रहिए। 95 एंड अबव रहता है तो हमें बच्चे का जो है हेल्थ का जो है हमको कि बच्चे का हेल्थ बराबर है, यह हमें समाधान भी मिलता है कि बच्चे का सैचुरेशन बराबर है, टेम्परेचर बराबर है। और इन जनरल हर 2-2 दिनों में हॉस्पिटल में डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट कीजिए। और जब कभी भी डॉक्टर को कोई भी डेंजर सिम्टम्स नजर आते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल में विजिट कीजिए। मैडम आपको पूछना था, सॉरी। इन शॉर्ट हमें जो याद रखना है, अवॉइड टचिंग मेन टू स्टॉप कोरोना वायरस, दैट इज माउथ, आईज एंड नोज, and follow women, that is wash your hands, obey the rules, measure the temperature and saturation, exercise daily and keep your nutrition proper. परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपको पूछना था कि अगर वैक्सीन ड्यू है और डिले हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में कभी आना है? हाँ, अभी वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बताया है कि वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण, ये एक अत्यावश्यक सेवा है। इट इज एन इसेंशियल सर्विस।
and it should be resumed as soon as possible. जैसा कि बहुत सारे रिसर्चेस में भी ये बताया गया है कि अभी प्रूव है, ये साबित हुआ है कि वैक्सीन जैसा BCG और MMR है, यह वैक्सीन इन जनरल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इन जनरल सारे वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यह वैक्सीन हमारा इम्यूनिटी बूस्ट अप करते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैक्सीनेशन को हमें टालना नहीं चाहिए। जो प्राइमरी सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन जिसे बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर होते हैं, DPT, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस, इन सब को प्रायोरिटी बेसिस पे हमें बच्चे को देना चाहिए। जो बूस्टर डोजेज है जो थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर फैमिली में कोई इशू है, फैमिली में कोई बीमार है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन इशू है, तो हम ये बूस्टर डोजेज थोड़ा डिले कर सकते हैं। बट इन जनरल हमें प्राइमरी वैक्सीनेशन सीरीज बच्चों का पूरा करना चाहिए। लेकिन ये करंट सिनेरियो में हॉस्पिटल में आना सेफ है मैडम? अभी हर यह क्वेश्चन हमें हर पेरेंट आज पूछ रहा है, फोन पे मैसेजेस आते हैं। बट अभी जो है, अगर घर में कोई भी बच्चा बीमार है तो इन जनरल सब फैमिली मेंबर थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, उन्हें सबको थोड़ा भय लगता है, एंजाइटी होती है। इस समय में हमें पहले तो कोई माइनर अगर इलनेस है तो हमेशा डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन पे पहले सलाह लेना चाहिए, और अगर डॉक्टर को यह लगता है कि हॉस्पिटल में आना जरूरी है तो हमें हॉस्पिटल विजिट करने में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर हॉस्पिटल में एक सेपरेट कोविड एरिया अलॉट किया गया है, जहाँ पे पेशेंट सेग्रीगेट होते हैं। बाहर जैसा ही हम हॉस्पिटल से अंदर आते हैं, पहला हमें हमारा टेम्परेचर स्क्रीनिंग होता है, कंप्लेंट पूछी जाती है, कोई पॉजिटिव है क्या वो पूछा जाता है घर में, और अकॉर्डिंगली पेशेंट सेग्रीगेट होता है। ऐसा समय में हमें जो है कि हॉस्पिटल में जब जरूरत है तो आना हमें अनिवार्य होता है। हमेशा यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्पिटल आने के पहले प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके आइए, ताकि वहाँ पे भीड़ और ओवरक्राउडिंग न हो सके और हमारा टाइम भी बचे। हॉस्पिटल में एंट्री होने के पहले हैंड सैनिटाइजेशन करें, एंट्री के पहले ही एक स्वच्छ मास्क पहने, सब बच्चों को भी मास्क पहनाइए, छोटे से छोटा बच्चे को भी हम थोड़ा टाइम तक मास्क पहना सकते हैं। आजकल फेस शील्ड्स भी छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है, वो भी आप उन्हें पहना सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों को तो कंपल्सरीली पहनाइए। अगर फैमिली में और जो है जो भी अकम्पनी कर रहे हैं बच्चों को, जनरली पेरेंट्स अकम्पनी करें, और सीनियर सिटीजन जो है 60 इयर्स एंड अबव हॉस्पिटल बच्चों के साथ न आए। हॉस्पिटल में आने के बाद बाकी लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, 6 फीट का दूरी बनाए रखिए, आसपास के वस्तुओं को टच ना करें, और अगर हॉस्पिटल में और फैमिली में कोई भी कोविड या कोरोना संक्रमित है तो फोन पे ऑलरेडी जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दे, सो दैट वो पेशेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे डॉक्टर अलग से और जल्दी सेवा मिल सके उनको। Okay. आपने टेलीकम्युनिकेशन और वीडियो कंसल्टेशन का बताया, तो वो सेफ है? इज इट एडवाइजेबल? हाँ, आजकल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का सब सिस्टम है, तो इस समय में हमें जो है घर बैठे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं टेली कंसल्टेशन द्वारा। तो यह सुविधा जो है पहले पीडियाट्रिशियंस जो है हमारे, आज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीडियाट्रिशियंस को भी यह सुविधा प्रोवाइड करने के लिए अनुमति दी है। जो कुछ जो मेडिसिन है जो सेफली बच्चों को दी जा सकती है, यह टेली कंसल्टेशन द्वारा दी जा सकती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो पेशेंट सेफ्टी है, पेशेंट को हॉस्पिटल और इन्फेक्टेड एरियाज में आने की जरूरत नहीं, साथ में उनका समय और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। दूसरा, क्वालिटी हेल्थ सर्विस आपको डिस्टेंस से मिलता है।
इवन दूसरे शहर में रहने वालों को भी, कभी रूरल प्लेसेस, रूरल एरियाज के लोगों को भी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है पीडियाट्रिशियंस की सलाह मिल सकती है। तो हमें हमेशा पहला टेली कंसल्टेशन द्वारा डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए और उसके आगे हमें फिर आगे का ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैडम कंक्लूजन में एक ब्रीफ में बता पाएंगे कि करंट सिनेरियो में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एज पेरेंट्स? हाँ, अभी जैसा कि हम देखते हैं कि हमें सब सोशल मीडिया से बहुत हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, सब जगह से भरपूर इंफॉर्मेशन मिल रही, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो हमें प्रोटेक्ट रहना जरूरी है। हमारे फैमिली को और हमारे सोसाइटी को हम कोरोना स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैंड वॉशिंग, डिसइंफेक्शन एंड सोशल डिस्टेंसिंग यह बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजों से हमारा इम्यूनिटी बना रहता है। साथ में हमें हमेशा अवॉइड फैमिली पार्टी, गेट टुगेदर, यह समय में हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ में यह हमें ध्यान रखना है कि हमें तनाव से बचना चाहिए। उसके लिए हमें जो है और करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है हमें आजकल जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है सब रिलायबल सोर्सेज से हमें लेना जरूरी है। उसके लिए हमें हमेशा जो रिलायबल साइट्स है, वेबसाइट जैसे कि ICMR, CDC, आरोग्य सेतु, ऐसे ऐप से हमें इंफॉर्मेशन लेना चाहिए जो विश्वसनीय एप्स है, सोर्सेस है। और दूसरा है कि हमें हमेशा इमरजेंसी के लिए भी रेडी रहना चाहिए, जैसा कि एम्बुलेंस के कॉन्टैक्ट नंबर्स, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिसिन शॉप्स, डॉक्टर्स, इनका हमें हमेशा यह इंफॉर्मेशन हमें इस समय में रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्प और बहुत सिंपल तरीके से बताई। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। I would like to welcome our next speaker, Dr. Sandeep Garg. He is MD, DNB Fellowship in Pediatric Cardiology. He is our consultant at Bhaktivedanta Hospital and Research Institute. Sir has special interest to conduct parenting seminar for holistic parenting and guide parents for modern age parenting problems. Sir, I would like to know, I welcome you, sir. I would like to know how as parents we can manage screen exposure because of the online classes nowadays going on of our children. Also throw some light on psychological effects of this pandemic on children and how to deal with it. Over to you, sir. Sir, mute. Can you hear me now? Yes, sir. Thank you. So, तो आज जनरली आज के टाइम में जहाँ पे सब लोग घर के अंदर कन्फाइंड है, बंद है, मोबाइल स्क्रीन ये सब एक तरह का वरदान है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन जब इस चीज की भी अति हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, एंटरटेनमेंट, सब चीजों के, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। और प्रॉब्लम को कैसे डील करें, मैं आपसे आज यही बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड स्क्रीन्स हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हमारे 24 घंटों में से 4 घंटा, 6 घंटा और कई बार 8 घंटा कंज्यूम करता है। तो कितना जाना सही है, कितना जाना गलत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारा स्क्रीन टाइम, मतलब कि मोबाइल, टीवी, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सबको देखने का जो हमारा टाइम है 24 आवर्स में से वो कंबाइन कर लिया जाए तो उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। तो जब ये स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले है कि स्क्रीन से हमारी आंखें लगातार जुड़ी रहती है, तो आंखों के अंदर एस्थेनोपिक सिम्टम्स आते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आंखें लगातार ऐसे सेंटर में देख रही होती है। तो इसकी वजह से
आंखों के ऊपर स्ट्रेन आता है, कई बार उसकी वजह से आंखें ड्राई होती है, इचिंग होती है, रेडनेस होती है, सर दुखता है, स्पेशली अबोव द आईलिड्स, यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर सर दर्द होता है, हेडेक होता है बेसिकली, और कई बार डबल विजन और ब्लरिंग ऑफ विजन भी उसकी वजह से होता है। तो आइस, जैसे ही बच्चू है, देखिए आप जिस तरह से दिख रहा है, करेक्ट पिक्चर। राइट, और लगातार सेम पोजीशन में बैठे रहने की वजह से बैक एक, नेक एक, यहाँ भी दर्द चालू होता है। इट्स वेरी कॉमन, जो मोबाइल देखते हैं उनको पता रहेगा ये चीज। स्टार्टिंग में हम लोग कंट्रोल करते हैं कि बच्चे क्या देखेंगे, लेकिन एक बार बच्चा जब चालू हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, तो वो डिसाइड करता है कि वो क्या देखेगा, एंड इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। तो हमेशा रिस्क रहता है कि बच्चा कोई बैड कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट उससे एक्सपोज हो जाएगा। जनरली कार्टून और मूवीज या मोबाइल पे लगातार कांटेक्ट होने की वजह से स्क्रीन एडिक्शन, मतलब कि बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, बात नहीं करेगा, ये भी चालू होता है। लगातार मोबाइल देखने से हमारे मूड और बिहेवियर में भी प्रॉब्लम चालू होती है, लाइक इरिटेबिलिटी। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे 2 मिनट का, जिसमें ये पूरा अच्छे से दर्शाया गया है कि चलो मान लिया जाए कि मोबाइल हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है और हमको देखना ही है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, या फिर लोगों से कनेक्ट करने के लिए हो। तो उसको सही तरह से कैसे देखा जाए कि इनके बैड इफेक्ट्स हमारे ऊपर कम से कम हो। ओके, आर यू रेडी? The education system of our country has been greatly impacted by the pandemic, and online classes have become the new norm. Prolonged screen time in front of computers and phones can have an impact on eye health of children and can cause redness, itching, watering, blurring of vision by the pandemic. And online classes have become the new norm. Prolonged screen time in front of computers and phones can have an impact on eye health of children and can cause redness, itching, watering, blurring of vision, and tiredness of eyes. Here are some health tips which can help in reducing the eye strain. Sitting upright on a chair is important to give full spine and shoulder support. Most chairs and tables are designed for adults and might be uncomfortable for children over long hours. Use of a pillow or a supporting footstool may make them more comfortable. The monitor should be a few inches below the eye level of the child so that they are looking down at the screen. The average font size should be kept above 12 to enable comfortable reading. The lighting is extremely important to reduce eye strain. Indirect lighting is the best for computer work as glare is minimal. Tube lights overhead cause glare due to reflections of the screen in the eye. Angle the monitor away from behind your computer or in front of it results in increased contrast and glare. So when at the monitor, let the windows be fully draped. Keeping your eyes to watch the screen can cause increased evaporation of the tears and can cause dryness and irritation. So please use the 20-20-20 rule. Take a break from any near work for 20 seconds for every 20 minutes of computer work by looking 20 feet away and blink several times. This enables better tear film stability. If your child complains of more itching, eye strain, or blurring of vision, it may be due to an undetected refractive error or any weakness of eye muscles. A quick checkup with an ophthalmologist can help solve this problem. It is our endeavor that while our children continue to pursue their education during this pandemic, they should do so with the greatest ease and comfort.
यस, वेलकम बैक। सो उस वीडियो में प्रॉपर्ली दिखाया गया है कि हमारा बैठने का पोस्चर वर्टिकल चाहिए। Hi, my name is Meredith Amen with the UC Health Integrative Medicine team. We're going to take the easy exercise designed to relieve tired eyes from looking at a computer screen or sitting and standing. Will you stop the video first? Yeah. By taking a nice comfortable seat, sitting up nice and tall, relax your shoulders, bring the shoulders onto the back of your body. We're going to begin by just rubbing the palms together. Create a little warmth in the hands. Sorry for inconvenience. 15 seconds. And then once the hands feel nice and warm, we're going to We have some technical issues. Just bear with us. Okay, Dr. Garg will join again and we will continue with the session. Maybe this is the time for all of us to give some relaxation to our eyes, because we have been on the screen for almost since 1 hour. So this is the time given by sir, I think. In the meantime, I would like to remind you all that we have shared the Google feedback form link with you all. So you can kindly fill up the form and share back with us. So if at all you have any queries, the same queries can be mentioned in the form so that we will answer all your queries. Thank you. For inconvenience. Yeah. Sorry for inconvenience. No problem. Yeah, so we move forward. We have discussed the right position, the screen size and the font, the light adjustment around us. The light should not be so too dim and too bright. The relaxation rule, that is 20 minutes, 20 seconds and 20 feet away. Focusing on exercising of eye, maintaining the nutrition, that is green leafy vegetables for vitamin A, citrus fruit for vitamin C. And whenever the problem persists, then look for refractive error. तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है, इनको करने के बाद में दिक्कत आती है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. But we should try to make all adjustment very well. As you see in the photo, कि इसमें जो ये रेस्ट है, बैक रेस्ट, वो लोअर बैक में होनी चाहिए, अपर बैक में नहीं होनी चाहिए. Angle of body to thighs, thighs to knee, knees to the foot should 90 degree. अपने पाँवों का वजन जो है वो इक्वली थाइज और फुट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. लेग शुड नॉट बी हैंगिंग अराउंड. सो द अगला सवाल आता है कि सर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए. ओके, बिकॉज जब स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, बिहेवियरल इश्यूज रहते हैं और लॉस ऑफ सोशल स्किल्स, मतलब कि लोगों से बात करना, लोगों से बर्ताव करने की जो स्किल है वो कम होती है और मोर ऑफ सेल्फ इंडल्जमेंट होता है और हमारा डेफिनेटली प्ले टाइम कट होता है. तो एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2 से 5 साल तक 1 घंटा और उसके ऊपर 2 आवर्स तक स्क्रीन टाइम अलाउड है. नाउ आज के जमाने में जब सब लोग कन्फाइंड है, इतना टाइम तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस ही खा लेती है. तो दिस टाइम इज ओवर एंड अबोव द ऑनलाइन क्लासेस. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी लिमिट्स फिक्स की है कि बच्चा प्री प्राइमरी में है तो 30 मिनट्स के अंदर, क्लास 1 टू क्लास 8 तक 45 मिनट्स के 2 सेशन ले सकते हैं और क्लास 9 टू क्लास 12
45 मिनट्स के 4 सेशंस मैक्सिमम ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। एंड उसके अलावा एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एंड कनेक्शन के लिए दिस रिमेनिंग द टाइम 1 hour फॉर 2 to 5 years एंड मोर देन 5 years 2 hours मैक्सिमम। हमारा स्क्रीन टाइम उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो आई वांटेड टू मेंशन फ्यू स्क्रीन अल्टरनेटिव्स। सो मेरा पर्पस है कि मैं आपको कुछ ऑप्शन दूं और आप उसमें से कोई 2 या 3 ऑप्शन चूज करें जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपके लिए बेस्ट है, तो वो चूज करें, नोट करें और अपने साथ में ले जाएं। ओके, तो फर्स्ट इज मोटिवेट टू हेल्प आउट इन द होम। जनरली बच्चे पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं, लेकिन लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी है, मेड्स भी अराउंड नहीं है, कि हम बच्चों को घर के ही जो काम हुए उनमें एक्सपोज करें, उनको बताएं कि ये काम भी होते हैं, समथिंग लाइक कुकिंग या क्लीनिंग द होम या क्लीनिंग द अलमारी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, आयरन करना, कपड़े मशीन में डालना, दीज आर द बेसिक थिंग वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू हेल्प आउट। अनदर इज इंडोर एक्टिविटीज। इंडोर एक्टिविटीज मीन्स घर में ही आप लोग खेलें। ओके, अनदर इज गेट देम आउट, लाइक देर आर सम ऑड टाइमिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, जब पार्क के अंदर और गार्डन के अंदर भीड़ नहीं होती है। ओके, या आफ्टरनून टाइम में जब भी ऑड टाइम, तो लोग कम से कम रहते हैं, वी शुड एक्चुअली गो आउट, बाहर जाना चाहिए और एक्चुअली साइकिलिंग, राइडिंग, स्केटिंग, रनिंग, दीज थिंग्स शुड बी डन। गार्डन में जाने से कोरोना नहीं फैलता है, बी एश्योर्ड। क्राफ्ट, तो अभी ये इन दिनों में पेपर क्राफ्ट, पेंटिंग, कलरिंग, इन चीजों के जो इक्विपमेंट्स है बच्चों को हमको अवेलेबल करवाना चाहिए। देर आर इनफ अवेलेबल इन अमेजॉन एज ए पैकेज, पेपर क्राफ्ट के वगैरह, तो उनको अवेलेबल करवा के बच्चों को देने चाहिए। नाउ वन मोर थिंग इज बोर्ड गेम एंड पजल्स। सो सांप सीढ़ी, लूडो, बिजनेस, चाहे वो कैरम बोर्ड है, दीज आर द फॉरगॉटन गेम्स। लाइक आज से 20 साल पहले हमारी जनरेशन में हम लोग उसको बहुत करते थे। नाउ दीज आर गेम्स, वो खाली खेलने के लिए टाइम पास की चीजें नहीं है। सिंपल सांप सीढ़ी, सिंपल लूडो टीचेस अ लॉट ऑफ लेसन्स, कि भाई सबको अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है। कई बार हम लोग जब सांप काटता है तो हम नीचे आ जाते हैं, जीवन में हार होती है। कई बार सीढ़ी आती है तो ऊपर जाते हैं हम लोग, जीवन में जीत भी होती है। बट वी शुड ऑलवेज कीप प्लेइंग, वी ऑलवेज कीप मूविंग अहेड। तो ये हमको बहुत सारी जो सोशल स्किल्स है वो भी सिखाता है। तो वी शुड री इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स इन आवर रूटीन डेली लाइफ। अपने बच्चों की जैसी एज है उसके अकॉर्डिंगली हमको खेलना चाहिए। जनरली 5 साल के ऊपर के बच्चे दे कैन ऑल प्ले द बोर्ड गेम एंड पजल्स। So we should introduce again. We can always open our photo albums from the marriage, from the childhood, and share the memories. It's very nostalgic. I'm telling you, it's very, very good experience. One more forgotten art is writing a letter. We can actually write a letter to our nana nani, dada dadi, or our old teachers, or our friends, and send them. It's really amazing experience. We can always make a video from the apps or read a book. I hope you must have liked at least 2 or 3 ideas from the list and you take home. So अभी मेरा जो अगला टॉपिक है that is कि इस लॉकडाउन में, जैसे डॉक्टर संख्या ने भी बताया, कि बच्चों के ऊपर बहुत सारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इम्पैक्ट हुआ है। आई एम वेरी श्योर जिन जिन के बच्चे हैं अपने, उन्होंने भी उसमें से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, जैसे एक बच्चा आया था, वो हमेशा ऐसा बोलता है कि हर आधे घंटे में वो अपनी आंखें ऐसे बंद करेगा, ऐसे करेगा और छोड़ देगा। एंड पेरेंट्स वर अमेज्ड कि क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। एंड दे गॉट टू नो कि उनके घर में एक बंदा बीमार है, जिसकी मम्मी बीमार है, तो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कुछ बच्चे आते हैं, दे जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, मतलब बीच बीच में पेरेंट्स को लगता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, दे कम टू हॉस्पिटल। मैनी चिल्ड्रन दे कंप्लेन ऑफ नॉन स्पेसिफिक हेडेक। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो जनरली बच्चों को उनके खुद के लेवल की फियर, उनकी एंजाइटीज, उनकी अनसर्टेनिटीज होती है, क्योंकि उनकी बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है, वो समझ नहीं पाते क्या चल रहा है।
वो अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होते हैं, आउटिंग को मिस कर रहे हैं। घर के अंदर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया में हमेशा यही चालू रहता है न्यूज के अंदर, आज इतने केस हुए, इतनी डेथ हुई, ऑल नेगेटिव न्यूज। और पेरेंट्स का, उनका खुद का हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, दिस ऑल थिंग इम्पैक्ट किड्स। घर के अंदर चिल्लाना, बच्चों को डांटना, स्लैप करना, ये तो बहुत कॉमन हो जाता है। कई बार चाइल्ड अब्यूज की नौबत भी आती है। तो उसके लिए ऐसे क्या सिम्टम्स है जिससे आइडेंटिफाई करें? जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चे रहेंगे तो चिड़चिड़े होंगे, फजी होंगे, माँ बाप से चिपके रहेंगे, क्लिंगी बिहेवियर, वो वो हमेशा कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बहाना बना के मम्मी से चिपक जाएं, चाहे वो पेट दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे रो रहा है। वो थोड़ा बड़ा बच्चा रहेगा तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम बताएगा, जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी, या वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, या वो एग्रेसिव होगा, मतलब कि चीज चाहिए तो चाहिए ही। कोई और बड़ा बच्चा रहेगा तो वो उसको डिप्रेशन में, या उसको ऑपोजिशन बिहेवियर, मतलब कि जो बोला है वो नहीं करना। तो ऑल दी सिम्टम्स कम, तो इनको आइडेंटिफाई करके वी सपोज टू एक्ट। अभी हाउ टू एक्ट, कैसे मैनेज करने का, इसके बारे में कुछ है। तो सबसे पहला बात है, स्टार्ट विथ योर सेल्फ। बच्चे आपके स्ट्रेस लेवल के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। तो सबसे पहले आप एज ए पेरेंट्स, हमको अपनी जो फीलिंग्स है अपने फ्रेंड्स या जो लोग हमसे पॉजिटिव रहते हैं उसे शेयर करनी चाहिए। खुद को एक्टिव रखना चाहिए, हेल्दी फूड, वी शुड टेक अ ब्रेक, वी शुड डेफिनेटली हैव कनेक्शन विद अदर्स। जो हमारी हॉबीज है उसको परस्यू करना चाहिए। और जहां लगा कि हमारे अंदर, खुद के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा है, वी शुड लुक फॉर हेल्प टू द राइट डॉक्टर। इस चीज के अंदर हमेशा याद रखिए कि प्रेयर्स, हमारा फेथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी प्ले अ मेजर रोल टू मेंटेन द पॉजिटिविटी एंड हाई, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो आप हैबिट बनाइए कि पूरा परिवार एक साथ आके खाना खाएगा, पूरा परिवार एक साथ जाके भगवान से प्रे करेगा या मॉर्निंग प्रेयर्स करेगा। दीज थिंग्स इम्पैक्ट अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, दिस थिंग्स इम्पैक्ट अ लॉट। और बच्चों के लिए भी क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले है कि टॉक टू देम, आस्क देम कि उनके क्या सवाल हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं, उनका एक एक जवाब दीजिए, ताकि उनको एक नॉलेज मिले जिससे वो खुद को पैसिफाई कर सके। नेक्स्ट थिंग, स्विच ऑफ द न्यूज चैनल, स्टॉप वॉचिंग द स्कोर्स। आज कितने केस हुए, सोसाइटी में कितने हुए, महाराष्ट्र में कितने हुए, कितनी डेथ हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवर लाइफ गोज ऑन। स्टॉप सीइंग दोज नॉनसेंस और नेगेटिव न्यूज। फिजिकली आपको उनके साथ में खेलना है, समथिंग सिंपल लाइक, एज सिंपल लाइक छुपा छुपी, छोटा बच्चा है तो पकड़ा पकड़ी, कबड्डी, जस्ट प्ले विद देम। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद अदर्स। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया के जरूरी के थ्रू ही, लाइक वीडियो चैट, आपको दूसरे से करें, इसके फ्रेंड से कनेक्ट करो। वो कनेक्ट होगा तो खुलेगा तो उसकी जो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है सब कम हो जाएगी। एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप हाइजीन। जनरली देखा गया है कि लॉकडाउन के अंदर बच्चे लेट नाइट तक मूवीज देखते हैं, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है तो उनका डे का रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। तो मेंटेन कि भाई सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सोते वक्त स्क्रीन ऑफ रहेगी, सोना 10 बजे है, तो दिस ऑल आर स्लीप हाइजीन। मेंटेन रेगुलर रूटीन। जनरली सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो रूटीन नहीं रहता है, कभी भी उठेगा, कभी भी नहाएगा, कभी भी खाएगा। So we should have a regular routine because now it is a daily life. It's not Sunday. It's daily life. So maintain a routine and always take help of yoga, meditation and prayer. Thank you very much. I hope आप इनमें से कुछ पॉइंट अपने साथ ले जाएंगे और अपनी लाइफ को आज जितना है उससे बेटर बनाएंगे। Thank you very much. Thank you so much, sir. एक्चुअली जो आपने कंसेप्ट बताया ना, इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं इसका स्क्रीनशॉट करके, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी आर अवेयर बट वी आर नॉट डूइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग इन दिस मैनर। मुझे याद है कि हमने बच्चों के लिए कैंपिंग किया था भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, तभी उनको एक एक्टिविटी दिया था कि प्रिपेयर द सर्टिफिकेट फॉर योर ओन पेरेंट्स। बच्चों ने किया था 5 years to 12 years,
और अमेजिंगली यानी एज एडल्ट्स हम लोग जो सर्टिफिकेट बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, इट फार फार बेटर प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन. तो वंडरफुल एक्टिविटी है. थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग इन सच अ प्रैक्टिकल वे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. On behalf of all the parents and viewers, I would sincerely thank you all for sharing your expert views on managing COVID in children. I am sure that this accurate and simple knowledge will definitely help all the parents to protect their dear ones in this pandemic. On this note, I thank you all the attendees for their presence and Dr. proudly Vaidhi, we have announce that announcement. yeah, We have one announcement. one announcement from my side. So I think Dr. Sandeep can do the announcement first. Dr. Sandeep, please. यस यस. तो आज के समय में जनरली पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि कुछ दिक्कत होती है तो करना क्या, इससे कंसल्ट करें. उनके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं रहता. तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन कांटेक्ट नंबर जहां पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो 24 आवर्स. Okay. हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स रहते हैं और वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे. And it is available at very minimal cost, just 150 rupees by Paytm on this given number, and you have a WhatsApp video call consultation. It's a proper consultation. The doctor will provide you one prescription with proper medication names, ताकि कोई confusion नहीं है, गलत dose, गलत दवा नहीं जाए, and you remain peaceful. So I request all to save this number. 9321996826. This is our department number. So save this number and share with everyone. We are always there caring for you anytime, anywhere. Thank you very much. It gives a lot of assurance, sir. While ending the session, I would like to make one more announcement that Department of Dietetics and Applied Nutrition, Bhaktivedanta Hospital and Research Institute is announcing the small training course on Vedic nutrition, that is going back to the roots, how to take care of your dear ones in this pandemic. It will be specifically for the nutrition. We will announce the details very soon. Once again, thank you all of you for attending this session, and I hope that this will definitely benefit you. Any queries, kindly share on the Google form, which is the link has been shared with you all. Thank you once again. Good night. Take care. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. But Thank you very not much. say. Thank you very much. Thank you very much.